In the 1960s, कब की बात है भाई? In the 1960s. In the 1960s, there was a race. Race means a competition, of course, right? A race is a competition. There was a race between the Soviet Union and the United States. So there was a competition between these two countries, the Soviet Union and the United States. And what was the competition about? To be the first country into space. They both wanted to be the first country into space. They both wanted to be the first country into space. They both had one dream. The Soviet Union will be the first country into space. The United States will be the first country into space. That's what their dream was. They were competing, they were racing. It cost a lot of money. This race cost a lot of money. Now, cost is the V2 of cost. Cost is an irregular verb. Regular and irregular verbs. I will remind you. Sometimes we add ed to change the verb in the past form. Live, lived, work, worked, earn, earned. So these are called regular verbs. But then there are verbs like go. The past tense of go is went. The past tense of come is came. The past tense of see is saw. So teach, taught. These are called irregular because there is no ed. Fine. So cost is an irregular verb. There is no ed in the past form. It cost a lot of money. You invite your friend to see your new house. Please come. You invite your friend to see your new house. Your friend comes to see your new house. And then you say, it cost a lot of money. What do you mean? The house, building the house. You invite your friend, you're showing your house to your friend. This is the kitchen, this is the bedroom, this is the bathroom. And then you add this line. It cost a lot of money. It cost a lot of money. What are you saying in Hindi? बहुत खर्चा हुआ, बहुत पैसा लगा. तो खर्चा हुआ, ऐसे खर्चा बोलने पर कॉस्ट वर्ड नहीं दिमाग में आएगा दोस्तों. जो बचपन से याद किए उस हिसाब से देखा जाए तो खर्चा स्पेंड से दिमाग में आता है, राइट? खर्च करना, स्पेंड. लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना से काम कर चल गया क्या? इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड इट्स रिटन हियर. It cost a lot of money. What cost a lot of money in this case? Here on this page, the story, the race, the race. They were both competing to be the first country into space. They both wanted to be the first country into space. And it cost a lot of money. Paisa kharcha karna pada. The United States spent, past tense of a spend. The United States spent about $100 billion. They spent about $100 billion. Both countries used regular verb or irregular verb? Regular verb, right? Used. Both countries used German scientists to develop their rockets. Both countries used German scientists. They didn't have technology. They used German technology, German scientists to develop their rockets. To go into space, you need rockets. You can't go into space in normal aeroplanes. So they used German scientists to develop their rockets. Who did they use? Who did they use? आपने गौर के सुना मेरे सेंटेंस? आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है बच्चों. आप हर फ्रंट पे फेल कर रहे हो. आप मीनिंग समझने में फेल कर जा रहे हो, ग्रामर खाली नहीं. मैंने कहा हु डिड दे यूज, तो आपने कहा अमेरिकन कुछ कहा ऐसा शायद. आपने अमेरिकन वर्ड यूज किया जवाब में ना. मैंने कहा हु डिड दे यूज. हु डिड दे यूज.
तो दे यूज है ना हमारे सेंटेंस में, तो उसको सब्जेक्ट वर्ब नहीं महसूस कर पाते आप। सारी गलती वही चीज की है। लेजी लोग कोई सक्सेस नहीं पाएंगे किसी चीज में, चाहे इंग्लिश सीखने की बात हो चाहे किसी चीज में। आई हैव अ बिग bunch lazy bunch of students in my class in the morning. First thing I have to come here and give a lecture about not being lazy in every day, and that's not very nice for somebody like me. मुझे आदत नहीं है गधों को घोड़ा बनाने की। You see, I train horses. I don't train donkeys into horses. I train horses. तो फिर से बोलता हूं, जब मैंने कहा हु डिड दे यूज और आपने अमेरिकन जवाब दिया, इसका मतलब आपको सेंस भी नहीं आया कि आपने क्या सुना और मैंने क्या कहा। हु डिड दे यूज, दे यूज, तो दे यूज्ड हु, दे यूज जर्मन साइंटिस्ट, राइट। Americans and Russians both used German scientists to develop their rockets. They didn't have their own scientists and technology to develop rockets to go into space. The space race began in 1957. फिर से बोलता हूं, ये सारी कवायद जितनी बातें मैं बोलूं, इट्स ऑल फ्यूटाइल। और मुझे अब तो कोई इंटरेस्ट नहीं आता है ऑनेस्टली स्पीकिंग टीचिंग आपको पढ़ाने में, एक दो को लोगों को छोड़ करके। क्योंकि उसकी वजह है साफ। मैं हर बार जब भी मुंह खोलता हूँ इंग्लिश में, आप कहते हो मुझे समझ नहीं आया। तो आप कर क्या रहे थे अब तक? यूनिट 7 में मैसेज थोड़ी पहुंचे होंगे। हर एक क्लास में एक दो बच्चे आपके जैसे रहते हैं, लेकिन पूरा क्लास नहीं रहता है ऐसे जो मेहनत ही नहीं करे, काम ही नहीं करे। आप लोग करके आए हो होमवर्क, दिखाओ अपना। क्या लिखा है? दोबारा देखने की जहमत उठाई तो टेकन क्यों छूट गया? क्यों छूट गया टेकन? टेकन क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ टेक? तो व्हाई इज टेकन रिटन हियर? संबंध की बात। क्वेश्चन आंसर ये चीज और बताना आप लोग। ना just I want to see what it is about जरा बच्चे कोई शहर यहाँ नहीं बना रही है। ये तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो? यहाँ पर नहीं कुछ लिख दो, यहाँ लिख दो। यहाँ ये क्या है? ये क्या है ये? हाँ, इडियट। तुम्हारा तुम्हारे दादाजी यहाँ पर रखे गए इसको जिसको तुम जब मांग में आएगा तुम जिसे छोड़ दोगे इसको। इसकी वजह तुम्हारे दिमाग में है जरा भी? ये प्लॉट तुम्हें डिट डिट क्या कर रहे तुम? ऊपर से नीचे क्या चल रहा है वो? सेंटेंस बाएं से बाएं चलता है, ऊपर से नीचे चलता है सेंटेंस। तो तेरा एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरे सेंटेंस में तो डिट समझ में आ रहा है कि वहां होना चाहिए। जाहिल हो तुम एक नंबर के, तुम्हें सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो तुम जाहिल हो। नीचे तक क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं करा तुम लोगों ने? अब मैं बताऊं तुम लोगों को, एक बार आज तुमने नहीं किया होंगे क्या सोच के? वीडियो को
तो खाली जगह में भरने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखो, cost, cost, spent, spent, use, used, begin, began, send, sent, become, became, go, went, take, took, say, said, हो गया काम खत्म। हमने सेंटेंस पढ़ा भी नहीं, हमने ऊपर कर लिया, फायदा हो जाएगा हमारा। नहीं करना, आपने ज्यादातर लोगों ने यही किया है। अपनी किया अब मेरे लिए नहीं आ रहे क्लास, आप अपने बेहतर फ्यूचर के लिए क्लासेस आ रहे हैं, ताकि आप इंग्लिश सीख के जिन लोगों को मुश्किल होती है बाद में, वो आपको ना फेस करना पड़े, इसके लिए। जो जो मैंने शॉर्टकट बताया, मुझे पता है आप लोगों ने ही शॉर्टकट किया हुआ है। आप में से कई लोगों ने सेंटेंसेस को ऑब्जर्व नहीं किया जरा भी, सीखने के लिए कि क्या लिखा है वहां पर। बस ऐसे खाली पास में कर दिया, वर्ड का बात खत्म। सेंटेंस सीखना था, लेकिन जब आप बोलना चाहोगे तो एक वर्ड बोलोगे, सेंटेंस बोलोगे, कैसे बोलोगे जब आपने पढ़ाई नहीं, ध्यान नहीं दिया सीखने के लिए? तुम तो डीप डीप क्यों कर रहे भाई, क्यों? अच्छा एक बात बताओ, वो क्वेश्चन आंसर देखो सब लोग, ये रहा बुक्स, ठीक है लोग, एक्सरसाइज टू पे ध्यान देना। और मुझे बताओ कि वो जो दो खाली जगह छूटे हैं, वो दोनों एक दूसरे से लिंक है कि नहीं है? लिंक है, तुमने एक भरा दूसरा नहीं। जैसे जहाँ हम इस मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे, जहाँ हम दिल को रट्टा मार जाते हैं कि दिल 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 दिल, सभी लोग कह जाते हैं व्हाट इज योर नेम। इस टाइम आता है जब इतना दिमाग खराब हो जाता है, क्या बोल जाते हैं? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर ग्रैंड फादर्स नेम। मुझे लगता है ठीक लगा ना, काफी इसका पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहे। ये जो लोग सारे वर्ब के पास्ट फॉर्म यूज किए, स्पेंड, यूज, बिगैन, वी टू यूज किए हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो वी टू यूज नहीं करते, वी वन यूज करते हैं, और इसलिए डिड होता है वहां। तो तुम्हें ये डिड कैसे लिखा हुआ पहले बता, क्योंकि डिड लिखने में दिमाग नहीं लगा था, सब दिख रहा था कि डिड लग रहा है पहला वर्ड तो डिड लगा, सोचना पड़ता है दूसरा वर्ड उसमें सोचेंगे। सही सोचा ना? कंडीशन कर रहे हैं अपने आप की। अगर आप सब लोग एक से दो तीन चार सेंटेंस में आगे बढ़ोगे तो गौर कर लोगे कि पहले ब्लैंक स्पेस में आपको दिल की जरूरत पड़ रही है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, वो लेजी और बहुत ही बेकार लोग होते हैं ऐसे, तो जैसी पेजिंग में तीन चार जगह दिल लगा है, अब वो सब जगह दिल पहले लगा देंगे, सोचेंगे भी नहीं कि हमें क्या लिखना है, दिल लगा देंगे, उसके बाद खाली जगह में वर्ड सोचेंगे। इससे क्या हुआ, उनके दिमाग में कोई जगह नहीं बनी कि दिल का रीजन क्या है आगे। हर एक सेंटेंस में अगर आप देखें, डिड और स्पेंड को साथ में देखें, एक साथ, जैसे डिड हाउ मच डिड द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेंड, डिड और स्पेंड दोनों बोल्ड में लिखे हैं। अगर आप गौर करें तो आप कहेंगे अच्छा, जो हम पॉजिटिव बोलते हैं तो बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स स्पेंड, द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेंड, उन्होंने खर्च किए। और अभी सवाल कर रहे थे पीछे, डिड द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेंड, ये हो गया, क्यों खर्च किए, वाई, कितना खर्च किया, हमार, लेकिन डिड द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेंड, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं, और ये पॉजिटिव में था, द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेंड। द स्पेस रेस began in 1957, अगर सेंटेंस नंबर 2 यहां से देखते हैं, द स्पेस रेस began in 1957, सेंटेंस लिखा है पॉजिटिव अगर देखा जाए तो, द स्पेस रेस began in 1957। अब हमें सवाल पूछना है तो बिगैन बिगैन नहीं रहेगा, वो बिगिन बनेगा। और इस चूंकि अब बिगिन बन गया है तो पास्ट टेंस का एहसास कैसे कराएंगे कि द व्हेन डिड द स्पेस रेस बिगिन। और ये दो चार लाइन यहाँ है, फिर आपके अपने जीवन के घटनाओं से पूछना पड़ेगा, तुमने कब मैट्रिक पास किया, यू पास मैट्रिक,
तुमने कब किया? When did you fast my friend? तो ये जो आप लोगों ने सच में अपने आप के अंदर झांक के देखिए कि आप लोगों ने जो होमवर्क किया वो किस लिए किया है। क्या वो खाली जगह भर के चले आए हैं? तो बिल्कुल जवाब है हाँ। क्योंकि जो सही में करते तो एक्सरसाइज 2 को भी उतना ही कंफर्टेबली करते। और कल तुम्हें एहसास कराया, अकेले में कराया, सबके सामने भी करा सकता था कि तुमने कितनी लापरवाही क्या करा है। आज तुम फिर वही करके किया है। कैसे नहीं? सेकंड कैसे लिखा है? तो गलती से लिखा है तो करेक्ट कौन करेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ, गलती से नहीं तो तुमने जानबूझ के लिखा है। जो तुम एक ही बात फेसबुक की तरह बोलते हो, गलती से लिखा है। मैंने कब कहा कि तुमने जानबूझ कर लिखा है? मैं कह रहा हूँ लापरवाह हो तुम। तुमको मतलब नहीं है, बस हो गया, मैंने काम कर दिया। सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी इस क्लास में। नहीं हो, अगर ये बात सच होती तो कल इतना लेक्चर सुनने के बाद, इतनी बेइज्जती झेलने के बाद तुम आज फिर से टेक एंड लिख करके नहीं चले आते। तुम उसको देखते दोबारा कि मैंने जो होमवर्क किया है कितना सही किया है, कितना गलत किया है। तुमने चेक किया था अपना होमवर्क दोबारा? क्यों? कल भी यही बात हुई थी कि तुमने अपना ऑडियो स्क्रिप्ट चेक नहीं किया था। बस जो मनाया लिख दिया, जो मनाया लिख दिया, लगा कि ऐसा शायद बोल रहा, बात खत्म। वो टेक्स्ट हमेशा वहां रहेगा, ठीक है? वो टेक्स्ट तुम्हें बताता रहेगा कि तुम क्या थे इंग्लिश में। जब बेहतर हो जाओगे तो अच्छा लगेगा देखने में। नहीं तो हमेशा याद रखना कि तुम्हारी रियलिटी क्या थी इंग्लिश में, कि तुम किस तरह के सेंटेंसेस दिमाग में ला सकते थे अपना। ठीक। सब लोग सुनो, आप अपना होमवर्क करते हो तो उसको चेक भी करोगे ना दोबारा कि मैंने क्या किया, क्यों किया, सही किया, गलत किया। सीखने के लिए करते हो कि मेरे लिए करते हो कि मैं चेक करूँ तुम्हारा? मैं क्यों चेक करूँ तुम्हारा होमवर्क? तुम्हें देखना है कि तुम सही हो कि गलत। ये तो वही हो गया कि बच्चे ने 4 और 9 13 लिख के ला दिया था, चेक करिए। तुम इस लेवल पे पढ़ाई करोगे कि हम चेक करें 4 और 9 13 है सही कि नहीं, कि तुम खुद डिसाइड करो कि यहाँ सही हो रहा है ये। Be a self learner. Make, you know, advancement in that direction where you become a self learner. A self learner. Understand the terminology. Somebody who learns on their own. Self learner. Otherwise, parrots बन के कभी language नहीं बोलता है। Yesterday you were here when I said, what is the past form of take? You said took. You are saying took again. तो ये तुम, how do you play blow hot and cold? ये hot and cold कैसे blow करते हो तुम? एक सेकंड में तुमने took बोला, वहां taken लिखा हुआ है। मुझे ठीक क्यों ना फीलिंग आएगी तुम? फिर एक बात बताओ, तुम किसी लड़की को खूब एहसास कराना चाह रहे हो, तुम बहुत प्यार करते हो तुमसे, और जब उसकी गिफ्ट खरीदने की बारी आती है तो गलती से तुम उसके लिए लाइटर खरीद के ले आते हो, हैं? तो सिगरेट नहीं पीती है, और बाद में जब वो मान लेगी कि तुम उसको बहुत प्यार करते हो। बड़े अजीब तरह के इंसान है ये। हमेशा मुझे एहसास कराना चाहते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। सामने से देखिए, टेकन लिखा हुआ वहां पे। कल ऐसी गलतियां करी हैं सिर्फ समीर को पता है, बस क्योंकि वो बैठा था। आप लोगों ने पढ़ना तो थोड़ी भी है एक दूसरे का टेक्स्ट। मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप सब एकदम इंटरेस्टेड नहीं इंग्लिश सीखने में। जीरो। आप अपने दोस्तों के टेक्स्ट पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अगर आप इंटरेस्टेड होते तो। जो ग्रुप है आपका, और आप ग्रुप में जब आपके दोस्त कुछ लिख के भेजते हैं तो लोग पढ़ते हैं एक दूसरे का, उस पर कमेंट करते हैं कि तुमने ये ऐसे कैसे लिखा है, सर ने तो ये सिखाया है। तुम लोग में से किसी ने, जरा इधर आओ सारे के सारे, बैठो जरा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कभी रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा कुछ इधर आओ। तुम लोग, तुम रहना ना, तुम बैठो, तुम लोग आओ।
खून जले मेरा हंसी उसके आगे। देखो यहाँ देखो इतना भी है, इसने लिखा टेक्स्ट। How much pocket money did you get? My dad gave me 6% a week. और सुनो, as 2.5 plates. क्या होता है इसमें? मतलब कुछ चीज होती होगी तो बता दो, कोई चीज होगी। सेंसलेस, मीनिंगलेस टोटली। इसको दोबारा क्लिक करने का ना उसको जरूरत हुआ ना किसी को रीड करने की जरूरत नहीं आई, और पूछा किसने कि ये क्या लिखते हो भाई, 6% of wheat as 2.5 plates का कुछ मतलब निकलता है, कुछ मन में आएगा लिख देंगे। सीधी हालत में हाथ से। आगे स्पीड ऑफ कॉमिक की बात, क्या मतलब होता है स्पीड ऑफ कॉमिक की बात? तुम लोगों ने किसने पढ़ा था? क्यों पढ़ा था? ठीक है, आगे स्पीड ऑफ कॉमिक की बात क्या होता है? स्पीड ऑफ कॉमिक की बात बात का फ्रेम की करना चाहिए, कोई बात कोई बोल रहा है इसका मतलब निकलना चाहिए, इसका तुम कोशिश करके निकालो मतलब, और बोलो कि हाँ निकल गया। स्पीड ऑफ कॉमिक, कॉमिक्स का स्पीड, कॉमिक्स का निकाल नहीं बनता ना, तो आप लोग का कुछ फेलियर है कि आप लोग एकदम एक्टिव नहीं हो, आप लोग के पास कोई ख्वाहिश नहीं है मेहनत करने की। मैंने सीखना ही है तो बस समय देना होगा, पढ़ना होगा, सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा। नहीं, तो इसी यही बताना चाह रहा था मैं कि आप सब एकदम इंटरेस्टेड नहीं है, आपको चाहिए इंटरेस्ट, आई नो, लेकिन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग हार्ड टू अर्न English. Nobody can put on a platter for you कि लिख भैया English पढ़ने, ऐसे नहीं है। You have to earn English. So that you have to give them time and energy. और ये इसकी इंग्लिश जैसे पटना यहाँ खाली जगह था, ये तीनों खाली जगह था, ठीक है, ये तीनों खाली जगह था, यहाँ डेट 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 था, ठीक है। ये डेट कैसे कोई लिख सकता है, कुछ नहीं लिखा है तो एक में लिखा तुमने आता है, इसको नहीं लिखा है, इसमें डेट कैसे लिखा, इस बार डेट आएगा, यहाँ नहीं पता क्या आएगा, लेकिन यहाँ डेट आएगा पता नहीं कैसे, यहाँ गोल्ड लिखा है। आधा जमीन में डालते हैं क्या पत्थर लाना पड़ेगा, गोल्ड लिखा है, ठीक है। सुबह सुबह का क्लास है यहाँ, हाँ? थोड़ा सा मोदी जी बन गया अथॉरिटेरियन, बन गया थोड़ा सा डिक्टेटर, हम भी बन गए थोड़ा डिक्टेटर क्लास। सच में यही करें, गोल्ड तुमने लिखा है जिस जगह, चलो मेहनत करते हैं, मेरा काम है मेहनत करना, तुम लोग बैठ कर आराम करें। The space race began in 1957. अरे क्लाइंटन हमें अभी वो स्पेस रेस बिगैन का नहीं सकता है, पूरी बात होती है स्पेस रेस बिगैन इन 1957। अब ये सब एकदम बेसिक सेंटेंस है, सुनते के साथ जैसे कहते हैं ना मुंह में डालते के साथ पिघल जाए ऐसी दिखाई होती, वैसे ही सुनते के साथ समझ में आ जाए। The space race began in 1957 when the Soviet Union launched the first satellite. So which incident started this race? Union launched a satellite, and this event
triggered this competition. Your neighbor buys a car, and then you say, I will also buy a car, more expensive car. Then he says, I will build a new floor on my house. Then he says, I will build 2 more floors on my house. Now you see what is going on? A race is going on to be the wealthiest person in the mohalla. Okay, to be the richest person in the mohalla. Race is going on. It happens, normal, it's typical. So similarly here, what happened? Which incident started? Your neighbor bought a car. And then you said, Beta, car dikhai ma. So you also bought a bigger car. Then he said, oh, so you are winning the race. Wait, I will build a new floor. Then you said, okay, I'll build 2 new floors. Now you see the competition is going on, race is on. Similarly, this race began in 1957 when the Soviet Union launched the first satellite, Sputnik. So Soviet Union launched a satellite called Sputnik, and this event triggered a race. Americans said, okay, fine, bring it on, ho jaye. They sent a dog into space on Sputnik 2. Sent is the V2 of send. They sent a dog on Sputnik 2. Then in 1961, Yuri Gagarin became the first man in space. He became the first man in space. So the USSR, the Soviet Russia, Soviet Union, they had success after success, success after success. They were winning the race in a way. They've sent the first man in space. And who was the first man in space? Yuri Gagarin. In 1961, he became the first man in space. He went around the earth once. He went around the earth once. It took 108 minutes. And this going around the earth took 108 minutes. What? Yeah, it took 108 minutes. In 1961, when Yuri Gagarin achieved this, President Kennedy of the USA said that before the end of 1969, Americans would land a man on the moon. Americans would land a man. Americans would land a man on the moon. Americans would land a man on the moon. वो चांद पे आदमी उतार देंगे. They would land a man on the moon. Right? ऐसे लैंड मतलब जमीन होता है, सब जानते हैं. इसीलिए कहता हूं सेंटेंस में वर्ड पढ़ना पड़ेगा. अगर तुम मुझसे लैंड पूछोगे तो मैं क्या बोलूंगा? जमीन, नॉर्मल, क्योंकि सबसे कॉमन मीनिंग लैंड का क्या है? जमीन, राइट? लेकिन अगर तुम मुझे सेंटेंस दोगे अमेरिकन लैंडेड अ मैन ऑन द मून, तो मैं नहीं बोलूंगा जमीन, मैं बोलूंगा हाँ, इसका मतलब हुआ उतार दिया. अमेरिकन लैंडेड अ मैन ऑन द मून इन 1969. तो वर्ड्स की मीनिंग बदल जाती है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. Lot of words in English belong to different parts of a speech, not one part of a speech. The same word can be a noun and a verb and an adjective. Noun है तो वो चीज होगा कोई, verb है तो कोई काम होगा, और adjective है तो बताता होगा कि कैसा है कोई आदमी या कोई चीज. Adjective का काम यही है ना, क्यों बताता है कोई चीज कैसा है या कोई आदमी कैसा है. अगर मैं आपको बोल रहा हूँ यू आर सच अ मीन पर्सन, आई डोंट लाइक यू, तो आपने मीन पर्सन सुना मेरे मुंह से, यू आर सच अ मीन पर्सन, तो आप एक आदमी हो, कैसे हो ये मैं बता रहा हूँ, कैसे हो, मीन हो आप. यू आर सच अ मीन पर्सन, एडजेक्टिव, राइट? और बाद में मैंने अगर किसी से बोला व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, यू मीन, तो यहाँ पर मीन एडजेक्टिव नहीं है, व्हाट डू यू मीन ये वर्ब है. फिर मैं बोलता हूं द मीन
फिर नाउन के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हैं, द मीन ऑफ दीज नंबर्स। तो द मीन ऑफ दीज नंबर्स यहाँ मतलब नहीं हुआ इसका, मतलब द मीन ऑफ दीज नंबर्स मतलब एवरेज। तो अलग अलग वर्ड, एक ही वर्ड के कई मीनिंग्स निकलते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे वो यूज होते हैं। इसको सीखना ही इंग्लिश सीखना कहते हैं। कभी कभी ऐसे जब मैं ये बात बोलता हूँ कि एक वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, तो लड़कों को लगता है, सीखने वालों को लगता है कई बार कि मतलब हम लोग पर डिपेंड करता है कि हम लोग जो चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो कई बार उन्होंने एक वर्ड को गलत जगह यूज कर दिया, फिर मैंने बोला ऐसे कैसे, तो मैंने इसको वर्ब के तौर पे यूज किया। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? आपको सीखना होता है पहले। अगर आप स्कूल, स्कूल नॉर्मली क्या है? नाउन वर्ब एडजेक्टिव, नॉर्मली नाउन, राइट? तो जब तक आपने स्कूल को एक वर्ब के तौर पे नहीं देखा है, आपको हक नहीं है उसको यूज करने का वर्ब के तौर पे। अगर आप कभी नहीं देखे तो आप नहीं यूज करिए। आप जानिए कि स्कूल नाउन है, जिस दिन आप जान जाएंगे कि स्कूल वर्ब भी है, तो फिर आप यूज करेंगे। और वर्ब है तो क्या होता है ये भी समझना पड़ता है। जैसे, हाँ राइट, माई, आई स्कूल्ड माई डॉटर एट होम, मीन्स आई होम स्कूल्ड हर, आई होम स्कूल्ड हर। तो आपको समझ में, अच्छा सर होम स्कूल्ड हिज डॉटर, ओके। उसी सेंटेंस को आपको रिपीट करना होता है अपने दिमाग में, ताकि आप एहसास कर सकें वर्ड्स का तरीका क्या है यूज होने का। सर होम स्कूल्ड हिज डॉटर, ओके। आई विल ऑल्सो होम स्कूल माई चाइल्ड इफ आई हैव टाइम, है ना? आई विल होम स्कूल माई चाइल्ड बिकॉज सर होम स्कूल्ड हिज डॉटर, सो आई विल होम स्कूल माई चाइल्ड। ये हुआ सीखना। आपने एक सेंटेंस सीखा, उसी हिसाब से अपने सेंटेंस बनाया, पैटर्न को कैच किया, ऑब्जर्व किया और रिपीट किया, ऑब्जर्व किया, कैच किया और रिपीट किया। सर होम स्कूल्ड हिज डॉटर, आई विल होम स्कूल माई चाइल्ड, माई अंकल ऑल्सो होम स्कूल्ड हिज सन। तो ये इस तरह से आप वर्ड्स को सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और सीख जाते हैं, और फिर वैसे ही रिपीट करते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आप अचानक से वो जो सेंटेंस इंग्लिश में सुने होते हैं उसको भूल जाते हैं, थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट बाद ही भूल जाते हैं। और थोड़ा बहुत याद रखते हैं, वो वर्ड याद रखते हैं, बाकी सेंटेंस भूल जाते हैं। और आप अपनी हिंदी सोचते हैं दिमाग में, और फिर हिंदी के हिसाब से इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, भूल जाते हैं आपने सुना क्या था सेंटेंस। तो वो गाइड ही नहीं कर रहा आपको, क्योंकि आप भूल गए। जब तक आप उसको गाइड के तौर पे यूज करिएगा जो सेंटेंस सुन रहे हैं, तब तक आप अच्छे इंग्लिश सीखते जाएंगे बिना गलतियां किए हुए। और अगर आप अपने गाइड को ही भूल जाएंगे, जो सेंटेंस आपको सिखाया जाता है वो गाइड बन जाता है आपका, कि अच्छा ऐसे यूज करना है। यहाँ क्या दिखा? इट टुक 108 मिनट्स। किस चीज की बात हो रही है भाई? द मैन यूरी गगारिन, he went around the earth once, he went around the earth once and it took 108 minutes। तो हम लोग भी बोलते हैं चलो भैया, हम ना नांदा कॉलेज के 3 चक्कर लगाए आज। आई आई वेंट अराउंड नांदा कॉलेज 3 times, राइट? ठीक है, आई वेंट अराउंड नालंदा कॉलेज 3 times। 20 मिनट में हो गया, हो गया। तो यही है गाइड का काम। ये सेंटेंस सामने है, गाइड कर रहा है आपको, गाइड कराइए अपने आप को। और ऐसे सिमिलर सेंटेंसेस लिख दीजिए घर पे, ग्रुप में बैठ करके। 1000 बार बोला है मैंने, आज एक बार और बोल रहे हैं। लेकिन हमें जैसे आज तक आप डिसअपॉइंट करते हैं, एक बार और कर देना कल डिसअपॉइंट, फिर मत लिखना जाके। इतने सारे सेंटेंसेस हैं, मैंने ये एक बता दिया, क्या आपके जहन में एक बात क्यों नहीं आती इस तरह की? वो पूरी जरूरी नहीं कि हर चीज को कॉपी करें आप, जस्ट के तस नहीं, आप सिर्फ इतना ही कर देते कि आज 20 को रोटी बनाए, 1 घंटा लगा, ऐसा भी कर सकते थे ना। आई मेड 20 रोटीज टुडे, आगे बोलो। ठीक है, बन गया। तो जो पढ़ेंगे उस पर ध्यान देंगे, फिर ऐसा सिमिलर सेंटेंस आ जाएगा दिमाग में। सुनो आगे।
In 1961, President Kennedy said that before the end of 1969, Americans would land a man on the moon. Rani will write, my father said, before the end of 2024, before the end of 2024, we will marry you. We will find you a husband. Just smile, come on, just a smile. Okay. Before the end of 1969, Americans would land a man on the moon. Americans would land a man on the moon. अच्छा बेटा यहाँ पर एक अब देखो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं समझते, तुम अपनी गलती नहीं समझ रहे हो कि तुम मेरे पे क्या असर करते हो एज ए टीचर, मेरे पर क्या असर होता है तुम लोग का। मैंने आज तक किसी क्लास में, किसी भी क्लास की अगर रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी यूट्यूब पे, एक आध डेढ़ साल से कर रहा हूँ, 2-3 क्लासेस की होगी, इतना देर मैंने नहीं लगाया होगा। ये अभी मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं बताऊं कि ना बताऊं। यहाँ वर्ड को एक्सप्लेन करने का मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मेरे हिम्मत नहीं हो रही कि मैं यहाँ वर्ड को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि तुम लोग कुछ नहीं सीखते। तो जो ABCD नहीं सीखता उसको Z क्यों बताने की कोशिश करी जाएगी, PQR क्यों बताने की कोशिश की जाएगी। वो वाला कॉन्फिडेंस हिला हुआ है मेरा तुम लोग की वजह से। वहां देखो उसने वुड नहीं बोला होगा, जो प्रेसिडेंट होगा उसने विल बोला होगा। सोचो जब आप टीचर की बात करते हो तो विल बोलते हो, क्या बोलते हो, जैसे बोलते हो आई विल डू दिस, इट विल रेन टुमारो, ठीक है। तो उसने कहा होगा अमेरिकन्स विल लैंड मैन ऑन द मून, क्या बोला होगा उसने, अमेरिकन्स विल लैंड मैन ऑन द मून, उसने यही कहा होगा। बिफोर द एंड ऑफ 1969 अमेरिकन्स विल लैंड मैन ऑन द मून, उसने ये लाइन बोला होगा अपने मुंह से, ठीक है। नहीं नहीं, तुम लोगों की प्रॉब्लम यही है, कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में चलता है, चाहे वो कितना गंदा हो। पैसिव वॉइस बोली ये लड़की, यानी तुम्हें जरा आइडिया नहीं है व्हाट पैसिव वॉइस इज, जरा आइडिया नहीं है तुम्हें कि व्हाट इज पैसिव वॉइस। उन्होंने कहा होगा, मैं प्रेसिडेंट कैनेडी के मुंह से शब्द निकले होंगे, अमेरिकन्स विल लैंड अ मैन ऑन द मून बिफोर द एंड ऑफ 1969, यही मुंह से निकला होगा, ठीक है। लेकिन ये लाइन हमें वो थोड़ी लिख रहे हैं, खुद थोड़ी लिख रहे हैं, तो कोई और आदमी बता रहा है कि वो ऐसा बोले थे, है ना, राइट। उनके मुंह से क्या शब्द निकले होंगे, इमेजिन करो, अमेरिकन्स विल लैंड अ मैन ऑन द मून बिफोर द एंड ऑफ 1969, राइट। यहाँ पर कोई आदमी बता रहा है कि वो ऐसा बोले थे। अब जब कोई आदमी रिपोर्ट कर रहा है कि क्या बोले थे, पापा ने बोला हमको, हम तेरा कैरम बोर्ड खरीद देबो, मैट्रिक में तू फर्स्ट डिवीजन ले आओ, हम तेरा मैट्रिक कैरम बोर्ड खरीद देंगे। पापा सेड, उनके शब्द में दोहरा रहा, आई विल बाय यू अ कैरम बोर्ड, आई विल बाय यू अ कैरम बोर्ड इफ यू गेट first division in matric. Okay, if you pass matric exam with a first division, I will buy you a carrom board. मेरा रिजल्ट आ गया, हम फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए, पापा को याद है, पापा आप बोले थे आप खरीद देंगे। पापा यू सेड यू वुड बाय, यू विल बाय नहीं बोलेंगे अब हम पापा को याद करा रहे हैं क्या, आप बोले थे कि आप खरीद दीजिएगा कैरम बोर्ड, यू सेड, आगे बोलना, you would buy me a carom board. You said you would buy me a carom board. ठीक है? Any problems? The man said to the girl, I will marry you. I will marry you. 2 साल हो गया, बीत गया, उसने शादी नहीं की। तो वो गई पुलिस के पास जाके बोले कि वो बोला था कि दोस्त शादी करेंगे, नहीं किया, है ना, बोला था कि शादी करेंगे। He said, he, no, he said he would marry, he said he would marry me, but he didn't. But he
2 years past, 2 years past. पुलिस बोलती रुको, बुलाते हैं। ओके, फिर तौहीद को बुलाया उन लोगों ने, बोला काहे ऐसा किया रे? बोला सर मेरा फितरत है। ऑलराइट, नेक्स्ट। बड़ी पिटाया था उस दिन, लेकिन फितरत उतार दी थी उन लोगों ने इसकी। उसके बाद से एकदम अकेले है आज तक, he doesn't even talk to girls. In 1961, President Kennedy said that before the end of 1969, Americans would land a man on the moon. अब समझ में आई बात, कैसे वुड यहाँ बन गया वो? जब आप किसी की बात बता रहे होते कि उसने फलाने ने ऐसा बोला था, और जिसने बोला था उसने विल बोला था, लेकिन जब आप बताते हो तो क्या बोलते हो? तीन एग्जांपल से समझ में आ गई होगी बात। पापा ने कहा था आई विल बाय यू अ कैरम बोर्ड, तो हम याद दिलाए पापा को, आप बोले थे यू सेड यू वुड बाय मी अ कैरम बोर्ड। लड़की जाके बोली हमको बोला था शादी करेगा, he said he would marry me, right? I hope you understand. So President Kennedy said that before the end of 1916, देखो दोस्तों, फिर से यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी बोलना, मैंने बहुत थोड़ी सी जानकारी आपको दी है, सिर्फ उतनी जितनी आपके पास रहना जरूरी है अभी फिलहाल के लिए। ये वुड को आखिरी बार नहीं पढ़ा हम लोगों ने ऐसे, वी विल स्टडी इट अगेन। लेकिन क्या है कि अगर ढेर सारा खाना एक साथ मुंह में डाल दिया तो पचता नहीं है ना, वैसे ही थोड़ी सी जानकारी दे के छोड़ दिया जाए तो थोड़ी जानकारी पच जाएगी, फिर उस पे एक लेयर और जानकारी डालेंगे, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस अलग बनता है उसका। फिर आपको याद रूल्स नहीं रखने की जरूरत होती है, आप आराम से स्मूथली इंग्लिश बोलते हैं, करेक्ट लिखते हैं, करेक्ट समझते हैं, करेक्ट। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ही डोज दिया है वर्ड का भी, आपको ये 2-3 एग्जांपल्स याद रह जाने चाहिए, दैट्स इट। In 1966, a Russian spacecraft landed on the moon. In 1966, a Russian spacecraft, right? Rockets and all. A Russian spacecraft landed on the moon. Landed on the moon in 1966. But there were no astronauts on board. There were no astronauts on board. बोर्ड मतलब बोर्ड होता है ना बेटा, बोर्ड मतलब बोर्ड, जैसे ये बोर्ड है, देखो उधर देखो बोर्ड, ठीक है। देयर वर नो एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, बोर्ड पे कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं था। इन 1968, नहीं नहीं मानना है, ठीक है बैठे रहो, बढ़िया है, ठीक है तुमको सिखा देंगे, बाकी मान लिया जान दो। क्योंकि जब तक ये नहीं तैयार होंगे इस तरह से सोचने के लिए कि क्या बकवास से बोल रहे हैं कि बोर्ड पे कोई नहीं था, ये क्या मतलब होता है बोलने का, जब तक इनका दिमाग ऐसे नहीं चलेगा तब तक इनको कोई नहीं सिखा सकता। हाँ, रॉकेट के सरफेस पे कोई नहीं था, देखो समझा लिया अपने आप को, ये बोर्ड मतलब सरफेस ना सर, सरफेस रॉकेट का, हाँ रॉकेट का सरफेस, और उस पे कोई नहीं था, सही। ओ खुदा, उठा ले, क्या समझ है भाई। बोर्ड मतलब सरफेस, सरफेस मतलब रॉकेट के सरफेस पे कोई नहीं था, है ना। मतलब जैसे अंतरिक्ष यात्री लोग जाते थे पक के जाते हो गया रॉकेट वहां पे, जैसे ही बता रहे। There were no astronauts on board. Let me give you an example. In Hindi there is a phrase, बस में 10 लोग सवार थे, 10 लोग सवार थे मतलब क्या हुआ? अगर वर्ड सवार घटा दो, बस में 10 लोग सवार थे, सवार वर्ड हटा दो, बस में 10 लोग थे, मीनिंग वही रही कि रही अलग हुई? वही रही, कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। बस में 10 लोग थे, बस में 10 लोग सवार थे, मतलब सवार वर्ड अक्सर हम लोग बोलते हैं, राइट, लेकिन अगर हटा भी दे तो बात वही लगभग रह जाती है, मीनिंग समझ में आता है। तो जैसे ये सवार मतलब प्रेजेंट, राइट, बेसिकली बस में 10 लोग सवार थे,
यानी बस में 10 लोग प्रेजेंट थे। तो वैसे ही देयर वर नो एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड। अब ऑन बोर्ड हटा दो, देयर वर नो एस्ट्रोनॉट्स। The spacecraft landed, okay, on the moon in 1966, but the spacecraft was empty. It was empty. There were no astronauts. There were no astronauts. In 1968, Apollo 8 orbited the moon. In 1968, Apollo 8 orbited the moon. In 1968, Apollo 8 orbited the moon. Okay, no astronauts on board. I'll give you a few examples. Some bad news is coming in. News channel wala bata raha hai. Some bad news is coming in. A bus has fallen into a river near this town, XYZ town. And all the 36 people on board are safe though. Okay. So the bus has fallen into a river. एक बस रिवर में गिर गई है। Luckily, all the 36 people on board are safe. Luckily, all the 36 people on board are, मतलब क्या हुआ? जो भी 36 लोग बैठे थे सब सेफ है। तो ऑन बोर्ड मतलब टू बी ऑन ए व्हीकल, टू बी ऑन ए व्हीकल, टू बी प्रेजेंट ऑन अ व्हीकल। एक मीनिंग ये हुआ ऑन बोर्ड का। जैसे अभी दूसरा एग्जांपल देता हूं। A boat has drowned in the river and all the 30 people on board are missing. All right. All the 30 people on board are missing. All the 30 people on board, matlab, all the 30 people who were present on the boat are missing. Okay. So on board, Sanjaya? Okay. So the the spacecraft landed on the moon in 1966. It was a Russian spacecraft, but thankfully for America, it was empty. There were no astronauts on board. There were no astronauts present in the spacecraft. Got it? There were no astronauts on board. On board matlab kya ho gaya? Present. There were no astronauts present. कोई नहीं था उसमें। In 1968, ऑन बोर्ड जब किसी और दिन पढ़ेंगे, कोई और सेंटेंस, एक कॉन्टेक्स्ट देता हूं। आर यू ऑन बोर्ड विद मी? आर यू ऑन बोर्ड विद मी मीन्स डू यू अग्री? तो मेरे साथ हो, एक बिल्कुल सही ट्रांसलेशन। आर यू ऑन बोर्ड विद मी मतलब जो मैं कह रहा हूं तुम भी वही अग्री कर रहे हो? डू यू अग्री विद मी? आर यू ऑन बोर्ड विद मी ऑन दिस डिसीजन? तो एक मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कैप्टन बोलता है, we decided, I thought a spinner would bowl the last over and the coach and the vice captain were on board with me. मतलब उनका भी वही राय था। तो when somebody is on board, तो वो इसका मतलब होता है वो अग्री कर रहा है। somebody is on board मतलब वो अग्री कर रहा है, वो सहमत है किसी बात से, जो भी बात वहां हो रही है, is on board। ठीक है। तो ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप अगर ना सीखें, हम एक साथ सारा सीखने की कोशिश करें। मैंने बोल दिया है, मैं सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस कर लें ना, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि कभी किसी दिन ये चीज आएगी। तो अभी बोलने से आपको लग रहा है कि अच्छा थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है जिसमें अगर आप राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन देंगे तो बच्चों को एकदम आसानी से वो चीज एक्सेप्ट हो जाएगी, एक्नॉलेज कर लेंगे वो। और अगर गलत टाइम पे बताओगे तो उनको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। तो सब चीज सही टाइम पे होता, आपने कचरा कर दिया। ये यूनिट 7 है, आप यूनिट 2-3 वाली सेंस लेके बैठे हो क्योंकि आपने काम नहीं किया यूनिट 2-3 से के बाद जो करना चाहिए था आपको, ताकि 7 तक आपकी सेंस पहुंचती। यकीन मानिए इस बारे में कि जब कोई स्टूडेंट वैसे ही काम करता रहता है जैसे उससे उम्मीद करी जाती है,
तो किसी भी यूनिट में उसको चैलेंज नहीं आता, उसको लगता है सब एकदम आसान चल रहा है, सब एकदम आसान चल रहा है, स्मूथ हो रहा है सब कुछ। ऊपर नीचे वो आप लोग के दिमाग में कलर गलत फहमी है, जैसे आपने उसमें पैसिव वॉइस बोल दिया, वो अपनी जगह पे है, ठीक है, वो अपनी जगह पे है। पैसिव वॉइस होता क्या है पता है? ऑब्जेक्ट को आगे लाना, इसमें तो कोई बात नहीं थी ऐसी, ठीक है। पैसिव वॉइस होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। मैंगोज वर थ्रोन ऑन द रोड, मैंगोज वर थ्रोन ऑन द रोड, आम फेंक दिया गया रोड पे। मैंगोज वर थ्रोन, चेयर्स वर हर्ल्ड एट ईच अदर, एक दूसरे पे कुर्सियां फेंकी गई। तो देखो यहाँ पर डूअर नहीं है, किसने फेंका नहीं है, चेयर्स वर हर्ल्ड, तो इसको कहते हैं पैसिव वॉइस, पढ़ी होंगी। लेटर इज रिटन, तो वहां पर वुड, विल से वुड करते समय पैसिव वॉइस क्यों दिमाग में है तुम्हारे? क्योंकि उतना क्लैरिटी नहीं, सीखा है जरूर। कभी अपने नाम में कोई कंफ्यूज होता है दोस्तों? क्योंकि क्लैरिटी होती है 100%, लेकिन कई चीजों में हम कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन का मतलब ही क्या है? लैक ऑफ क्लैरिटी, lack of clarity. If you have clarity, then you will not be confused. If you are confused, it means there is lack of clarity. And I hope that as you practice more here with every unit, the clarity that you're looking for is available to you. Anyways, let's continue. On board, there were no astronauts on board. चलिए फिर इससे एक न्यूज आ रहा है भाई, सम बैड न्यूज इज कमिंग फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। एन इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर is missing. Thankfully, it was all empty. There was nobody on board. It was an automated helicopter. All right. चलिए बात खत्म हो गई. It was a drone type helicopter. Okay. There were no personnel on board. There were no Air Force officers on board. मतलब कोई भी नहीं था. बस इतनी हिंदी हुई ना? बोर्ड का कोई हिंदी हुआ? कोई बोर्ड का हिंदी किया नहीं ना किया? जैसे ही सवार बोलना कोई जरूरी नहीं होता, वैसे इंग्लिश में ऑन बोर्ड जब बोल रहे बस ऑन बोर्ड बोल दिए, उसका हिंदी करने की जरूरत नहीं। अब चाहे तो सवार बोल सकते हैं क्योंकि उस पर कोई सवार नहीं था। नेक्स्ट, in 1968 Apollo 8 orbited the moon. Orbited the moon. Orbited the, anybody who has studied a little bit of chemistry knows electron orbit the nucleus. Electrons orbit the nucleus. Orbit, go around. Okay. So in 1968, Apollo 8 orbited the moon, went around the moon. Then in 1969, Apollo 11 landed on the moon, and Armstrong and Aldrin walked on its surface. These two guys walked on its surface. Its surface means on the moon's surface, on the moon's surface, on its surface. The space race ended in 1975. The space race ended in 1975. Ended. Subject, the space race. The space race ended. The space race khatam ho gaya. The space race ended in 1975. When the Russian Soyuz 19 met and joined America's Apollo 18 in space. So which event ended the space race? Which event? Event मतलब घटना होती है ना? अभी थोड़ी देर पहले बात की थी. Which event ended the space race? Russian Soyuz 19 met and joined America's Apollo 18 in space. They started working together.
So the Russians won the race to put the first man in space. They won the race to put the first man in space. But the Americans put the first man on the moon. They are both partial winners. They're both partial winners. Absolute winners, partial winners. Russia won a little bit. America also won a little bit. Look at the answers about the space race and complete the question. About $100 million, $100 billion. How much did the United States spend? In 1957, when did the space race begin? Three, a dog. On a Sputnik, right? Four, in 1961. Right. When did Yuri Gagarin become the first man in space? Once. Hmm. Six. Right. Seven. Right. And last. Well done. Practice with each other. The 8 questions. Okay, enough. There is one more page, homework for tomorrow. It's in the group. And now I've shared another photo in the group. Go to the main book. Go to the main book. Grammar spot box, the blue box. Write the past simple forms. Dekho. On the left side, we have some present simple sentences. On the right side, you have to write the past simple sentences. Do it. Yep, on the same page. Yep. Grammar spot. I want to go. In Hindi, मैं जाना चाहता हूँ, चाहती हूँ. Past simple. Hindi. मैं जा चुका था. I wanted to go, मैं जा चुका था. चलो ठीक है, ये भी अच्छा है. नहीं, पहला वाला बढ़िया था. मैं जा चुका था. I wanted to go. गौर करना, want change into the past tense. बाकी कुछ नहीं.
I want to go. मैं जाना चाहता हूँ. मैं जाना चाहता था. I wanted to go. और to go में कोई चेंज नहीं है. मैं चेंज हो ही नहीं सकता. चेंज हो सकता है सिर्फ want में. जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है उसको बदल सकते हैं फॉर्म उसका. I want हम चाहते हैं. I wanted हम चाहते थे. जाना to go, to go. I want to go. I wanted to go. हम एक घड़ी खरीदना चाहते हैं. I want to buy a watch. हम घड़ी खरीदना चाहते थे. I wanted to buy a watch. हम तुमसे शादी करना चाहते थे. I wanted to. क्यों शादी करना चाहते थे तुम मुझसे? Why did you want to marry me? Why did you want to marry me? क्योंकि तुम सुंदर थी. Because you were beautiful. बस यही रीजन था. English. Was this the only reason? No, actually there was another reason. Why? My brother liked you. What? Yeah, I wanted to, you know, annoy him. You are a really vulgar person. Get out of my sight. Okay. क्यों करना चाहता था शादी? Because his brother liked her. Sala. Sorry, guys. Some brothers do not grow like, brothers. They grow like enemies. Why is that? Some brothers have, and some sisters as well. They have the same feelings for each other. Sister one has a boyfriend, sister two wants that boy. Exactly him. No, not his brother. I want him. Because my sister likes him. That's why I want him. They're like swapins. Such a sad thing. I think the parents are somewhere responsible for this. If two brothers do not have that feeling for each other that like brothers do, or two sisters do not really look out for each other, care about each other, I think parents are responsible. They did not raise them properly. They did not really take care of them properly. And that's why they develop this feeling for each other. Most brothers and sisters sacrifice everything for each other, don't they? I think if you find 9 cases of this kind where two sisters are in love with the same boy or two brothers are in love with the same girl, they're both ready to sacrifice for each other because they really love their brothers and sisters, most of them. But you will find 1 or 2 such brothers and sisters who are so jealous of each other. They want to do everything to just harm each other, hurt each other. What kind of relationship do you share with your siblings? What kind of relationship do you share with your siblings? Normal, healthy relationship where you look out for each other. You look out for each other means you take care of each other. You might have seen 2, 3 brothers are there. You give one of them a chocolate, then he says, "Bhai bhi hai wahan." Means give one more. I have a brother too. You might have seen that. So what is he doing? He's looking out for his brother, okay? Somebody hits his brother. He goes and fights. Why did you hit my brother? Yeah.
So that's like looking out for each other, taking care of each other. So what kind of relationship do you share with your siblings? Normal, healthy relationship where you look out for, of course, you'll fight with each other. That's normal. Brothers, sisters fight, siblings fight. Sibling fight is the most natural thing. But at the bottom of it, there is always care. So much of care. And I think it's because of good parenting. When parents create that rift between siblings unintentionally, some parents unintentionally create that rift. They make those comments, look, your brother is doing that great, you're doing nothing type of a statement. And that's when you start to develop a negative emotion for your sibling. But when parents understand, they're mature, they understand, the right way of bringing up children, you will never hate your brothers or sisters. You'll always have a very good feelings for them. You can quarrel with them. Quarreling is absolutely natural. We all quarrel. We hit each other too. That's also normal. But again, at deep inside somewhere, there is a lot of love and care. You can fight, nobody else can hit him. Okay. So guys, the next sentence is he loves it. What is the past tense? He loved it. He loves it. उसको अच्छा लगता है. He loved it. उसको बहुत अच्छा लगा. He loved it. मैंने उसको एक घड़ी गिफ्ट में दी. He loved it. I gave him a watch as a gift and he loved it. Do you watch TV? What's the past simple? ध्यान में रखना, खाली यहाँ बोलने के लिए मत करो. बातचीत में क्वेश्चन के आंसर करते समय ध्यान रखना कि यही था. Did you watch TV? Where does she work? Where did she work? साहिल को पल्ले नहीं पड़ा, आपको चुप है, बेचारा कोई जवाब नहीं दे पा रहा है. I don't buy sweets. हम नहीं खरीदे मिठाई. मिठाई नहीं खरीदे. English? I didn't buy sweets. They don't go on holiday. They didn't go on holiday. Past tense है. Past tense में ज्यादा दिमाग नहीं लगा ना, बस इतना जानना. Past की बात करो, past tense यूज करो बिंदास. Okay? Past tense कैसे होता है? हम लोग नहीं गए कहीं हॉलीडे में. नहीं गए कहीं. हो गया past tense. कैसे? गए, गए. Past tense. हम लोग कहीं नहीं जाते हैं. हम लोग नहीं जाते हैं. Present. जाते हैं. We don't go on holiday. We don't go on holiday. हम लोग कहीं नहीं गए. We didn't go anywhere. Done. Chalo. Quickly. Exercise 3 and 4 on the same page. Remember, Dadaji Bill, grandfather Bill, he said, we didn't have color TV in those days. यही कहा था उसने. क्या कहा उन्होंने? We didn't have a color TV in those days. It wasn't a color TV like nowadays. यही कहा था ना. तो बाकी टीवी प्रोग्राम्स के बारे में वो क्या बोले थे, याद करो. There were not TV programs all day long. यही कहा था उन्होंने ना कि टीवी प्रोग्राम दिन भर. इंग्लिश हो जाएगा बोलो. There were no TV programs all day long. There weren't TV programs all day long. Planes के बारे में क्या बोले थे वो? We didn't take planes. याद करो, उसने कहा I didn't take planes like people do now. सुन लेना फिर से और कल आकर के आंसर करना 3 or 4. Okay, so listen to the conversation again. 7.2.
and we will continue tomorrow, of course. बहुत आसान काम है अगर समय दे के किया जाए, बहुत सिंपल, खासकर मेरे तरीके से जैसे मैं कराता हूँ, क्योंकि मैं सिस्टम रखता हूँ ना। आप देखो प्रेजेंट सिंपल में आप लोगों ने लापरवाही की, लेकिन आप देख रहे हो पास्ट सिंपल भी वैसे ही अरेंजमेंट, सब्जेक्ट V1 V5 की जगह V2 होता है, बस और क्या। तो थोड़ा समय दे दो, घर जाके प्रैक्टिस करो, मेक सिमिलर सेंटेंसेस। आज जो पढ़े हो उसके जैसे अगर कोई लाइन समझ में आई, अच्छी लगी, उसके जैसा सिमिलर सेंटेंस लिख दो 2-4 ग्रुप में। और कल का होमवर्क पहले दे दिया है, 1 पेज इन द प्रैक्टिस। आई विल सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय।